मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। सेगमेंट है सवाल है वर्ल्ड कप का। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स जो कि द ऑर्किड स्कूल गुलशन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं जी। My name is Sarfraz Ahmed Kashan. I study in class 7. Okay. You. Kainan, I'm Kainan Firdaus and I study in grade 7. My age is 14th. Okay. And I love cricket because it motivates me to play. You. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Shahan. I'm from the Orchid School Gulshan chapter. I'm 14 and I'm in class 9 and I love cricket. Okay. So first, let me tell you the rules of this segment. I'm going to ask 3 questions each, which is going to be the choice round. The second round is no choice round, and in these 2 rounds, whoever is going to score the most correct answers, 2 out of you, 3 people. So these 2 will be going into the final round. Okay, is that clear? So now we are going to start, and my first question to you is, what is an official way of being dismissed in a cricket match? What is not an official way of being dismissed in a cricket match? The choices are hit wicket, timed out, or 6 and out. 6 and out. 6 and out is the right answer. Okay. Now my second question to you is, in which year the cricket rule change stated that a batsman is not allowed to have a runner? 2010, 2011, or 2012? 2011. 2011 is the right answer. And my third and the last question to you is, the longest test match recorded lasted for how many days? 9 days, 3 weeks, or a month? For a month. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 9 days. Okay. And now we move on to Kainat. Kainat, are you ready? Okay, my first question to you is, which is a famous bowler who is known for his deadly Yorkers and his Silingi action? Shane Bond, Rubel Hossain, or Lasith Malinga? Malinga. Malinga is the right answer. You have got 10 points. And now my second question to you is, when the ball is alive, how many people are there to be needed on the field? 11, 13, or 15? 15. 15 is the right answer. Now my third and the last question to you is, which is the only team which has scored the most hundreds in 3 formats? Pakistan. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Australia. So you've got 2 correct answers, you've got 20 points. And now we move on to Mohammad Shayan. Shayan, my first question to you is, when a batsman is dismissed off on the first ball and he has not scored, or he has not scored a run, what is that called? A duck? A duck is the right answer. And my second question to you is, the highest score of Sachin Tendulkar in his international cricket career was how many runs? 238, 248, or 258? 238. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 248. Shayan, my third and the last question to you is, who break the 28-year-old record of Waqar Yunus, the youngest bowler, by taking 5 wickets in any one-day international? I'm giving you the choices: Hassan Ali, Mujib Zadran, or Mustafizur Rahman? Hassan Ali. I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is Mujib Zadran. Okay. So at the end of the first round, Sarfraz, you have got 10 points. Kainat, you have got 20 points, and Shayan has got 10 points. Okay. And now we move on to the second round, which is the no choice round. Okay. Sarfraz, are you ready? My first question to you is, which team won the Under-19 World Cup 2018? Australia. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is India. Okay. My second question to you is, which cricket team hold top position ICC T20 international ranking in 2018? New Zealand. No, the answer is again wrong. The correct answer is Pakistan in 2018. Okay, and with this we move on to Kainat. Kainat, are you ready? My first question to you is, Pakistan tops in January 2018 ICC T20 international ranking
after defeating which team? India. No, I'm sorry, your answer is wrong. The correct answer is New Zealand. My second, the last question to you is, in which format Asia Cup 2018 was played among Asian cricketing teams? In which format of the cricket? 10 overs. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is One Day International, that is 50 overs. Okay, and now we move on to Shayan. Shayan, are you ready? Okay. Tell me, Qaid-e-Azam Cricket Trophy is a tournament of which sports? Cricket. Cricket is the right answer. And now the second question to you is, the last question. Which team holds the record of largest margin of victory by runs in One Day International? Pakistan. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is New Zealand. And viewers, with this, we come to an end of the qualifying rounds, and we have come to the conclusion that Sarfraz will not be able to continue with us because you've got 10 points. And Kainat and Shayan will be continuing with us for the final round. Thank you, Sarfraz. You can sit back. So now, Kainat, are you ready? We are starting the final round. My first question to you is, test match. In test matches, the longest and highest standard form of international cricket, it lasts for how many days? 9 days. No. A regular test match lasts for how many days? 1 day. No, I'm sorry, the answer is wrong. The correct answer is 5 days. Okay. Now my second question to you is, if a team is not able to bowl all the overs and the time is limited because of rain or anything, what is the method that is used to calculate for how many runs this team will be needed to win? There is a certain method. I'm sorry, you cannot tell me the right answer. The right answer is Duckworth-Lewis method. Okay. And now we move on to Shayan. Shayan, are you ready? Yes. My first question to you is, which team has a record partnership in the history of ICC Cricket World Cup? Pakistan. No, I'm sorry, the correct answer is India. Now my second, the last question to you is, which player has a record of most ducks in the international cricket career? He's a bowler. Mohammad Amir. No, I'm sorry, the answer is again wrong. The correct answer is Mutaya Muralitharan. So it's a tie between you two, and to break this tie, I would be asking one question each to you. Kainat, my first question to you is, in which year did Pakistan cricket team lift the World Cup, International Cricket World Cup? 2012. No, I'm sorry, the answer is wrong. Do you know in which year did Pakistan lifted the World Cup? International. Sir, and with this we come to a conclusion that today's winner is Shayan. Shayan, many congrats to you. Medicam gift hampers will be given to you. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये सेगमेंट सवाल है वर्ल्ड कप का अपने ख़त्म पर पहुंचता है। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन वो जोशो खरोश नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो जोशो खरोश हुआ करता था वो पाकिस्तान की टीम की वजह से ख़ास तौर पे हुआ करता था, और हमारे प्रोग्राम का टाइटल भी यही था कि वर्ल्ड कप हमारा है। लेकिन कोई बात नहीं, 2021 का ना सही 2022 का इंशाल्लाह हमारा होगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चले कि कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में फतह हासिल ना कर सका, और यानी इस मैच को, जो कि शायद पाकिस्तान की शुरू से ही थोड़ी सी बदकिस्मती इस मैच में यूं भी रही कि टॉस पाकिस्तान नहीं जीत सका, फिर आखिर के ओवर्स में पहले बैटिंग करते हुए जो स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, जिस तरह पाकिस्तान पिछले मैचों में करता रहा था, वो भी कल नहीं नजर आया। शोएब मलिक या आसिफ अली भी कल नहीं चल सके। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने गो के शुरू में थोड़ी स्लो बैटिंग की, बाद में अपने स्ट्राइक रेट को कवर कर लिया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से रन रेट पाकिस्तान को पहले बैटिंग करते हुए चाहिए था, कम से कम ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, वो शायद हासिल ना हो सका। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, और सबसे बढ़ के इस बात पे भी बात करेंगे कि जब कप्तान से पूछा गया कि कोई एक ऐसी वजह जो आप समझते हो कि जिसकी वजह से आप ये मैच हारे हो,
तो कप्तान से भी ना रहा गया और उन्होंने ये बोल दिया कि शायद हसन अली का जो कैच ड्रॉप हुआ शायद वो एक वजह हो सकती है। बाद में उन्होंने उसको कवर भी किया, लेकिन उस वक्त चूंकि एक ताज़ा मामला था। बहरहाल हसन अली पे काफ़ी ट्रोलिंग भी चली है और सोशल मीडिया पे बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे हैं। आपको एक वीडियो भी हम प्रोग्राम के दौरान दिखाएंगे जो कि बाबर आजम हमारे कप्तान की है, क्या उन्होंने कहा ड्रेसिंग रूम में, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अपने पार्टिसिपेंट का तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे पहले पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू नाज़रीन, इसके अलावा रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आसिम भाई आपको भी। नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं और यानी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम सर, वेलकम। इसके अलावा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब, जो कि अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नवीद भाई, आपसे आगाज करते हैं सर। सबसे पहले तो ये कि खेल है, थोड़ा सा हम जज्बाती भी हो जाते हैं। रात में तो ऐसा लग रहा था पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो शायद इतनी उदास किसी और मौके पे ना हुई हो जितनी कल उदास थी। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मैच तो हमारे हाथ से चला गया और वर्ल्ड कप 2021 में हम नहीं ले सके, लेकिन ये अच्छा है, चले कोई बात नहीं। एक साल के लिए क्या बनना था, 2 साल बाइक को उठाएंगे दोबारा इंशाल्लाह 11 महीने सर, इस उम्मीद के साथ। हाँ। और कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, अच्छा खेल के हारे हैं। खेल का दिन देखिए, हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का दिन बुरा ना हो। कल हमारी शुरुआत बुराई से होगी। टॉस हम पहली दफा हार गए। टॉस हारने के बाद हमने कुछ मौके भी छोड़े, रन आउट हमने छोड़े इस मैचेस के अंदर। देखें, हम ये तो कह रहे हैं कि कैच उसका छूटा, क्या है जो जिस पोजीशन पे छूटा उस वक्त मैच बराबर पे ही था बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो मौके हमने जाया किए, जब उनके स्कोर 100 के बाद जब उन्होंने चांस दिया था, 100 से दरमियान में रन आउट हमने मिस किए। बैट का जो रन आउट मिस किया हमने, वो हमारे लिए नुकसान का बाइस नजर आ रहा था। मैंने कहा यार ये खतरे की घंटी है, पाकिस्तान के रन आउट इस तरह से मिस हो जाना। वार्नर भी रन आउट बचे, तो पाकिस्तान ने 3 तो रन आउट ऐसे मिस हुए इतने बड़े मैचेस में। और इतने कितने बार थे वो लोग, हमारे प्लेयर्स के निशाने लग नहीं पाए। सर कल हमारा दिन बुरा था। कोई बात नहीं, अच्छी क्रिकेट खेली, बेहतरीन क्रिकेट खेली। और यहाँ पर मैं क्या नाम है, हमारे जो हसन अली हैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। उसने बेचारे ने पूरी एफर्ट करी, अपनी प्लेयर अपनी पूरी एफर्ट करता है जितनी उसकी एबिलिटीज होती हैं। हो सकता है हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कहीं हमारे कोई फुकदान होगा कि उन्होंने उसको जिस तरह सेलेक्ट किया, उसने तो अपना पूरा का पूरा दिया। और हो जाता है, मैच प्रेशर होता है। स्मिथ से भी कैच छोटा वहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया है। तो हमें कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। इसके अंदर हार गए, कोई बात नहीं, अगली दफा जीतेंगे। ये गलतियों से सर सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना हो। मिसाल के तौर पे हफीज ने जिस टाइम पर बॉल करने के लिए आए थे, वो बड़ा क्रूशल टाइम था, हम उसको बोल नहीं रहे, डिस्कस नहीं कर रहे। वो एज ए सीनियर प्लेयर थे, उनके हाथ से बॉल छूट गया। पहले आप आने से पहले थोड़ा देर साइड में एक बॉल कर लो यार, कि आपके हाथ में बॉल ग्रिप कर रहा है नहीं कर रहा। आपने पूरा मैच का मोमेंटम इधर कर दिया। जावेद साहब, इस पे भी बात करना चाहूंगा। आखिरी के ओवर्स की सिलेक्शन ठीक थी आपके ख्याल में? क्योंकि ओवर्स कुछ और भी बॉलर्स के पास मौजूद थे, उस मौके पे दूसरे बॉलर्स को भी लाया जा सकता था। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे ख्याल में तो कप्तानी बिल्कुल सही की है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो आखिरी ओवर्स के अंदर बॉलर जिनका इंतखाब किया गया वो भी सही था, क्योंकि आपके पास पीछे जो और मजीद बॉलर नहीं थे, उन्हीं बॉलर को आपको रिलाई करना था। और जो हमारी टीम के लिए एक बुरा ओवर गया, जो कि 18वां ओवर था हसन अली का, उसमें भी। और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी ने जो बॉलिंग की, असल में आप सामने वाले प्लेयर को देख करके गेंद करते हैं। आपका बॉलिंग कोच जो है आपको क्या सिखाता है, आपका बैटिंग कोच, आपका मतलब पूरा जो एक कोच होता है वो आपको क्या सिखा रहा है। जब आपके सामने जो खिलाड़ी खड़ा हुआ है वो इस किस्म की तेज गेंदों पर जो है इसी किस्म के शॉट खेलता था बैट, वो मशहूर है ये शॉट खेलने के लिए। और बाद में उसने ये बात बोली कि शाहीन आफरीदी ने मेरी तवक्का से ज्यादा तेज गेंद की, और उसने सिर्फ बैट दिखाया अपना और गेंद को बाहर फेंक दिया। ठीक है फरहान भाई, जिस जगह शॉट्स लगाए, बाद में कुछ क्रिटिक्स ने यह भी कहा कि थोड़ा सा फील्डर को सही अगर ले लेते और या फिर उस जगह गेंद ना करते। एक बैट्समैन का एक अच्छा पॉइंट है, आप उसको वहीं पे गेंद दे रहे हैं, चाहे आप जितनी गोली की स्पीड से दे दें, लेकिन उसके पॉइंट पे उसको गेंद तो मिल रही थी ना, अब वो उठा के उसी तरीके जी। इससे पहले बिग बैश के टूर्नामेंट में हम देखते आए हैं, और मैथ्यू वेड को अच्छा एनालिस्ट होते हैं, सबको कमजोरियां पता होती हैं। अब आप एक चीज वहां पर थी कि हमारे जो फास्ट बॉलर थे उनकी स्लो वन नहीं चल रही थी, जो स्लो वन इतनी इफेक्टिव चल रही थी, हारिस रऊफ की, हसन अली की, शाहीन शाह की, उन सारी बॉलों पर तकरीबन गेंद बाउंड्री से बाहर गई है। तो मैथ्यू वेड ने जब एक गेंद, जब से पहले इनका कैच छूटा हसन अली से, तो वो स्लो वन बॉल थी जिसपे वो
वो फास्ट बॉल, उसके बाद जो दूसरी बॉल स्लो वन मारी तो वो समझ गए कि अब स्लो वन नहीं मारेंगे, तेज गेंद करेंगे, तो उन्होंने पहले से पिन आउट कर लिया था। इसके अलावा हसन अली पे जो बातें हो रही हैं वो सब कुछ हो रहा है, तो वो डॉक्टर साहब देखिए ना, हसन अली के 6 मैच हैं, 6 मैचों में उनके 22 ओवर हैं और उसके अंदर 250 रन है और सिर्फ इनकी 5 विकेट हैं और इनकी इकोनॉमी रेट 9 की है। और इसके अलावा ऑफ द फील्ड उनकी जो वो कहते हैं जो वीडियोस आई हैं वो भी एक इसका बन रहा है उनको, वरना अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती और थ्रू आउट तो वो फॉर्म में होते और फाइनल में परफॉर्म नहीं किया होता तो हम नहीं बोलते। इस तरह सारे लड़कों ने अच्छा खेला, सबने परफॉर्म किया तो इसलिए वैसे इनको उंगली उठी सर। लेकिन अच्छा आसिम साहब क्या समझते हैं सर, खासतौर पे हसन अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि 40-44 रन की एवरेज उनकी रहती है मैचेस में, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी इस T20 वर्ल्ड कप में वो खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। कोई फेवरेटिज्म था बाबर आजम की तरफ से हसन अली के हवाले से, एक तो ओवर देना, दूसरे मैच में खिलाना, अब तो लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि खिलाना ही नहीं चाहिए था। देखिए बॉस, बात ये है कि फेवरेटिज्म तो मैं नहीं कहूँगा। आप जब कप्तान होते हैं, आपके साथ आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना टीम के अंदर, जो पावर है प्लेयर के अंदर, वो नोज वेरी वेल कि वो किस कैलिबर का बॉलर है या बैट्समैन है, तो आप अपने जो प्लेयर है उसको यूटिलाइज करते हैं एंड मौके के ऊपर। और कभी कभी ऐसा होता है इंसान रिलाई कर रहा होता है अपने प्लेयर्स के ऊपर, गो कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। यहाँ पे हम क्रिटिसाइज हसन अली को तो नहीं कर सकते कि हसन अली ने परफॉर्म नहीं कर रहा, मुस्तकिल नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो ये टीम मैनेजमेंट को या कप्तान को चाहिए उसको स्विच कर दे, उसकी जगह दूसरा अल्टरनेट आपका मौजूद है। वसीम को आप जूनियर वसीम को ला सकते थे, ठीक है, नवाज को आप यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, उसी पर रिलाई कर रहे हैं, तो देखें कोई ना कोई तो प्लेयर होगा ना जो नाकिस कारकर्दगी करेगा। इस मरतबा स्पॉट वो बन गया बेचारा। लेकिन मैं ये कहूंगा, ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसी परफॉर्मेंस गई है तो हमें उसको बैक करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नवीद भाई क्या कहते हैं आप सर? अगर उनका आप एवरेज बॉलिंग एवरेज देखें पिछले 3-4 मैचेस में 40-44 रन से ऊपर का एवरेज होना, इट मीन्स के बॉलर्स को, इस बॉलर को रन्स पड़ते हैं और इस बॉलर को एक ऐसे वक्त पे बॉल दे देना जिस वक्त आपको हर सूरत में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हर बॉल के साथ 5-6% कम होती जा रही थी, उस वक्त आप समझते हैं ये मौका था हसन अली को ओवर देने का? डॉक्टर साहब देखिए, कप्तान के पास ऑप्शन क्या था, उसने इसको ऐसे बॉलर ही खिलाया ना तो उसी पे चांस लेगा। जो पक्का बॉलर होता है कप्तान उसी पे चांस लेता है, यार मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मैंने इसे खिलाना। अब रह गई बात, देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर क्या हम सिर्फ 11 प्लेयर्स लेके गए थे पाकिस्तान टीम में मैच खिलाने के लिए, टूर्नामेंट खिलाने के लिए? देखिए मैं आप बताऊं कि हमने जो हमारे प्रीवियस मैचेस गुजरे हैं, 2 मैचेस ऐसे थे वहां हमने अपने प्लेयरों को मौका देना चाहिए था। मैं उस वक्त भी कह रहा था हसन अली को आप बिठाएं और वसीम को चांस लें, क्या मालूम वो उससे अच्छे बॉल आपको करके दिखा दे। आपके पास मौका तो आपने करनी है, टीम हम उसी टीम से खेलेंगे, उसी टीम से खेलेंगे। चलिए आपने 5 मैच जीत लिए, बड़ा मैच कौन सा था? वो 2 मैच बड़े नहीं थे, बड़ा मैच ये था आपका। इसकी आपकी प्लानिंग इसकी होनी चाहिए थी। मैं आपसे कब से कह रहा था कि अपने प्लेयर्स को छुपाएं, बचाएं कुछ प्लेयर्स को। देखिए कुछ प्लेयर्स को आपने दिखाना नहीं होता, उन्होंने बड़ा जबरदस्त होमवर्क किया हुआ था, उनको पता था पाकिस्तान के कौन कौन से बॉलर कब स्लो करेंगे, तैयार थे वो लोग। सर मेरे ख्याल में वो कंप्यूटर पे तमाम चीजें रिप्लेस देख के और सारा कुछ करके, वो खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी पे उनका जितना होमवर्क था। मैं आपको बताता हूँ सर, बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है ना, और अब तो इतना कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए हैं, बॉलर के हाथ की ग्रिप को वो जब चेक कर लेता आता है ना, तो उसके लिए कोई मुश्किल कहानी। वार्नर ने देखे कोई मौका मिस नहीं किया। पाकिस्तान की सही कह रहे हैं कि विकेट में कल कोई ड्यू फैक्टर नहीं था, कल कोई मैच हमारे पास होना चाहिए था। जिस वक्त हफीज बॉल करने आए थे, बॉल स्पिन कर रहा था, शादाब के साथ एक स्पिनर ने बॉल करनी थी, आप ब्रेक पे तो जाते यार, आप पकड़ लेते मैच कल का। आपने समझ में नहीं आ रहा था आप गेंद किस तरफ करना चाह रहे हो। सही बात है। तो डॉक्टर साहब ये मेरे को समझ में, ये थोड़ा सा मुझे फुकदान नजर आया कल पाकिस्तान के। चले आपसे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, नाज़रीन यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप के साथ, यानी पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं द ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन अब हम बात करना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला से। इनको बड़े मुश्किल से राजी किया है। वैसे तो ये कह रहे थे कि मैं कमेंट्स नहीं देना चाहता, अफसरदा भी हूँ, कुछ जाहिर सी बात है, बड़ी हर पाकिस्तानी टीम के साथ हर शख्स की एक ख़ास फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, और मेडिकल में भी कहा जाता है इंसान जब मैच देखता है तो अपने आप को खुद फील्ड में खड़ा हुआ महसूस करता है। फिर स्पोर्ट्स से एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है जुनैद खलील नैनीताल वाला का, हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी
जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी सर? जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा जुनैद भाई, कल का बड़ा एक शायद कुछ बैड लक भी थी, आप क्या समझते हैं सर? मैच तो हार गए, डेफिनेटली खेल में हार जीत होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स समझते हैं जिनसे शायद मैच को बचाया जा सकता था? देखिए मुझे जो है ना साफ बात ये थोड़ी सी जो है ना वो एक ऐसी जगह पर एक ऐसी पोजीशन नजर आई जहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया कैप्टनसी का और उसकी लैकिंग का नजर आया। बट आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग के लोग ये बोलेंगे कि यार मैच हार गए तो इससे लोग जो ना क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, बट बीइंग अ क्रिकेटर हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो ना वो नोटिस करते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा मैच में नोटिस करेंगे कि बाबर आजम जो है ना वो फखर जमान के ऊपर शोर कर रहा था जब उसके पास से थोड़ी दूर जो ना बॉल गिरी थी, तो ये बेसिकली कैप्टन कीपर बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉल कराने से पहले अपना फील्डर जो है ना वो देखना और उसको सेट करना कि उसने कहां पर खड़ा किया हुआ था। एक दूसरी चीज ये कि हमने एक चीज नोटिस की कि ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें जो ना वो गिरी हैं। उस 5 विकेटों में 4 विकेटें जो ना वो आपके स्पिनर्स ने ली है। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास आपके एक स्पिनर का जो ना एक ओवर बाकी है और आपको ये भी मालूम है कि जो ना वो मैक्सवेल जो बेसिकली रिवर्स स्वीप मारता है और इमाद वसीम इतना एक्सपीरियंस, आपका पीएसएल का जो ना कराची किंग्स का जो ना वो कैप्टन पिछले 10 साल से पाकिस्तान टीम के अंदर जो ना वो खेल रहा है और उस प्रेशर में खेलता है जहां पर आप पावर प्ले में उससे बॉलिंग कराते हैं। बिल्कुल। वहां पर आपने उसका एक ओवर रोक कर जो ना वो हसन अली उस बॉलर को जो ना प्रेफरेंस दी जो बेसिकली पूरे टूर्नामेंट में जो ना वो रन पड़ रहे थे, जिसका कॉन्फिडेंस वैसे ही जो ना वो शेक हुआ था हसन अली को। तो आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर जो ना इनको ये थोड़ी चीजें जो ना वो नोटिस करनी चाहिए। ये अच्छे कैप्टन और बहुत अच्छे कैप्टन में ना इसी चीजों का जो ना वो फर्क होता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कल जो कि बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में भी बोला, अगर जब उनसे पूछा गया कि कोई एक ऐसी वजह जो आप समझते हो जो मैच हारने का बाइस बनी, सर कप्तान का ये कह देना कि जी हसन अली का कैच ड्रॉप करना मे बी वन ऑफ द रीजंस, क्या कहेंगे आप? देखिए वो हसन अली का कैच ड्रॉप करना तो वो बेसिकली थोड़ा सा मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर हसन अली खुद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ना एक गंदा बॉलिंग स्पेल करके जो ना फील्डिंग करने के लिए खड़ा हुआ था। इट माइट बी पॉसिबल कि कैच जो ना वो छूट जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में कैच छूट भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो शाहीन आफरीदी ने जो बॉलिंग कराई, आई थिंक आप इतने बड़े इंटरनेशनल बॉलर हैं, इतने जमाने से आप जो ना वो बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 एस बॉलर जो ना वो आप है, एक कैच छूटने के बाद आप 3 छक्के खा रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने अभी एक इंटरव्यू में शायद आफरीदी को भी ये चीजें सुनने में बोला कि भाई कैचेस छूटना इज पार्ट ऑफ अ गेम। तो इन कैच छूटने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये जस्टिफिकेशन है कि आपका कैच छूट गया तो आप अपनी बॉलिंग नहीं कराएंगे। अगर आप थोड़ी सी जो ना ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को नोट करें, व्हाट दे पीपल डिड कि वो विकेटों से दूर रहे, वो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारते रहे, आप बड़ी मुश्किल से जाके जो ना रन बना रहे थे, आपने अपनी क्लास यूज की रन बनाने के लिए। आई पर्सनली थिंक कि ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम जो ना पाकिस्तान को 20 रन कम बनाने दिए। सर कम से कम 20 से 25 रन आप कह सकते हैं, यानी खास तौर पर आखिर के 2 ओवर्स में शोएब मलिक का आउट हो जाना, आसिफ अली का नहीं चलना, यानी ये तमाम चीजें वो हैं जिस वक्त पाकिस्तान हार्ड हिटिंग करता है और अगर पाकिस्तान अपने प्रोजेक्टेड बैटिंग पे जाता है तो मेरे ख्याल में स्कोर आराम से 180 से 90 के दरमियान कहीं होना था। हाँ, अब आपको बॉलर्स को ये चीज नजर नहीं आ रही कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंक के आप बच सकते हैं, विकेट के अंदर तो आप बच ही नहीं पा रहे। आप बार बार बोल्ड करना, एलबीडब्ल्यू करने के पीछे लगे हुए, और चलो आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक छक्का खा लिया दोबारा। बट मैं इस दफा एक बात जरूर बोलूंगा, आई थिंक पाकिस्तानी अवाम इज वेरी ब्रेव कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान की हार बड़ी शान और शौकत से जो ना वो रिसीव की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सब कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो हम तुमसे प्यार करते हैं, ये बात बड़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, अब 11 महीने तो अगले नेक्स्ट वर्ल्ड कप में है, क्या कुछ सीखने को मिला है पाकिस्तान को? लास्ट क्वेश्चन है आपसे। देखिए सीखने को तो सिंपल सी एक चीज है कि हर मैच जो है ना वो हर मैच की तरह खेला जाता है। कोई टीम जो है ना वो इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो है ना वो गिव अप करने के लिए नहीं आती, और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं कि अगर आपके पास क्रूशियल टाइम आया हो
तो आप बेसिकली अच्छा आप थोड़ा सा एक चीज नोट करें, ये वो वाहिद टाइम था जिसके ऊपर वाकई जो है ना हमारे बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। बिल्कुल हमारे बैट्समैनों ने तो प्रेशर जो है ना हर तरीके से बचा लिया। पहले मैच में हमारे ओपनर्स ने अच्छा खेला, नीचे के मैचेस में आसिफ अली ने जो है ना आपको क्रूशियल टाइम पे जितवा दिया। उसके अगले मैच में आपका शोएब मलिक ने आपको जिता दिया। दैट वाज द ओनली टाइम जहां पर एक्चुअली प्रेशर जो है ना वो बॉलर्स के ऊपर आया और वो फेल हो गए। सर आप यकीन करें जी सर, हाँ आई थिंक थोड़ा सा जो है ना मैनेजमेंट को जो है ना बॉलिंग के साइड के ऊपर देखना चाहिए। सर अगर आप याद करें तो वकार यूनुस और वसीम अकरम ऐसे ही मौकों पे रन्स रोका करते थे और मैच का पासा पलट जाया करता था। हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको ये चीज नोट करनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा कि आपको डेप्थ बॉलर जो है ना क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको नामों से बाहर निकलना पड़ेगा। आई थिंक हमें जो है ना वो यंगस्टर्स को चांस देना पड़ेगा। आपका पीएसएल पे बड़ी अच्छी लाट लगी हुई है जी, आप हसन अली को साइड में रख के जो है ना दूसरे बॉलर्स को चांस दें, इट माइट बी पॉसिबल वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए यॉर्क स्कूल ICC T20 वर्ल्ड कप पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप हमारा है पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे आजकल चल रही है, जिसमें बाबर आजम ने टीम से बात की है। आइए पहले वो दिखाते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, क्लिप आपने देखा, हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी देखा। नवीद भाई, बस थोड़ी सी इस पर बात करेंगे प्रोग्राम अख्तामी मराइल में। सर, बाबर आजम का कहना है कि कुछ ऐसे ही चीज़ें चलती रहें और मतलब हमने सीखा है इससे बहुत कुछ। एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, क्या सरफराज का रोल यही रहेगा कि वो खिलाड़ियों को बकअप करते रहें, पानी पिलाते रहें, या कोई चेंज भी आएगा, उनको भी कभी मौका मिल सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, बात फिर पीछे की तरफ चली जाती है ना। अगर जारी बात करेंगे, सरफराज की जो टीम थी उस टीम में क्या खराबी थी जो आपने उठा के पूरा सेटअप चेंज कर दिया। 11 सीरीज जीता हुआ कप्तान था बॉस, आपने कप्तान चेंज किया। आपने टारगेट वर्ल्ड कप था ना, आपका वर्ल्ड कप तो मिस हो गया आपके पास से। अब आपके पास एक कप्तान मिला है, अब हमने इसको सपोर्ट करनी है। उसने जो भी स्ट्रेटेजी दी है, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा इसको कंटिन्यू रहना चाहिए भी। हाँ, कुछ चीजें आपको वीकनेस नजर आनी चाहिए आई है इसके अंदर। हमें आइंदा आने वाले टूर्नामेंट के अंदर हमें 6 ओवर की प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। आप देखें कल के मैच के अंदर मार्श ने जो रोल किया, जो उन्होंने प्ले किया, 3 ओवर में उनके 13 रन थे और अगले 3 ओवर के अंदर वो 53 पे स्कोर ले गया। इसका मतलब क्या होगा, सर्किल का जो गेम है T20 क्रिकेट के अंदर, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा कि आने वाले मैचेस के अंदर, आने वाले टूर्नामेंट के अंदर अगले से थोड़ा सा आए तो उसको तैयारी करके जाएं कि हमने इस स्ट्रेटेजी के साथ कि हमारे दोनों ही तरफ से प्लेयर जो हैं वो 6, 7, 8 से खेलते रहेंगे, मुश्किल हो जाएगा। आसिम भाई क्या कहते हैं सर, क्या स्कॉटलैंड या अफगानिस्तान के मैच में सरफराज को मौका नहीं देना चाहिए था? डॉक्टर साहब देखें, जब आप कोई टीम आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर यही होता है कि 22 करोड़ आवाम से आप उनको चुनते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उन पर रिलाई करें, आप उन पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और हर प्लेयर को चेक करना चाहिए। आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास इतने मौके थे, आप चेक कर सकते थे। ये नहीं कि पाकिस्तान हार गया तो हम इसलिए ये बात कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आप प्लेयर को जब लेके जाते हैं ना, उसका बैकअप करना चाहिए, आप उसको सपोर्ट करनी चाहिए और मौका देना चाहिए। इस तरह उनका जो है ना मोरल जो है ना डाउन हो जाता है अगर आप उसको प्लेयर को मौका नहीं देते। वसीम हो गए, सरफराज हो गए, नवाज हो गए, मतलब आई मीन वो उनकी क्या फीलिंग्स होंगी कि एक टीम के साथ हैं लेकिन ऐसा लगता है वो पार्ट टाइम में, बस उनको कुछ करना ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। सर क्या समझते हैं, हसन अली निशाना बनेंगे अब क्रिटिसिज्म का मजीद, या टीम में कोई चेंजेस आएंगी उनकी बॉलिंग और फील्डिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, हसन अली पे तो उंगलियां उठ चुकी हैं और अभी से नहीं उठी। ये जब 2 मैच हो चुके थे तो उनको इशारा मिल जाता कि आप ऐसे मैचों में मोहम्मद वसीम जूनियर को चेक करें। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगा, फीलिंग हुई कि कोई दोस्ती और फेवरेटिज्म का शिकार हुए बाबर आजम। उन पर बहुत ज़्यादा एक हद तक ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान टीम भी है, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक किया। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि जैसे जुनैद भाई ने भी बोला कि इस दफ़ा ज़्यादा हमारे आवाम ने इनको के लिए, उसकी एक वजह है डॉक्टर साहब, हमने 24 अक्टूबर को आधा वर्ल्ड कप जीत लिया था। इंडिया को जब हमने मारा टूर्नामेंट में आधा वर्ल्ड कप जीत चुके थे। और दूसरी बात आपने रिजवान की तो रिजवान को आखिरी वक्त में बाबर आजम का इंटरव्यू मैंने सुना भी, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लगते थे। उन्होंने कहा था आप रेस्ट कर लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं खेलूंगा। लेकिन 52 गेंदों पर उन्होंने जो रन बनाए वो उनकी थकावट का शिकार था। 52 गेंदों पर 80 रन बनाने वाला प्लेयर था वो। ठीक है, आप क्या कहते हैं जावेद भाई? पाकिस्तान इस सेमीफाइनल को हारने के बाद इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गया, लेकिन कहीं अगर आप
इस तरह से करते हैं किसी की हक तलफी, मैं कहूँगा इसमें कुछ खिलाड़ियों की हक तलफी की गई, जिन्हें आजमाया नहीं गया, जिन्हें लेकर के गए आप, और जो आपके सीनियर थे उनको भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जब आप हक तलफी करते हैं तो वहाँ उसका नतीजा फिर इसी तरीके से आता है। तो जिस तरीके से फेवरेटिज्म दी गई, और हसन अली के ऊपर जो है मुझे ऐसा लगता था कि उनको ये फैसला जो है मेरे ख्याल में शायद जो है ना बाबर आजम का नहीं था, हसन को आखिरी मैच में खिलाने का, मुझे ऐसा लगा है। और ना उनसे वो बॉलिंग हुई, ना वो फील्डिंग कर सके, और फिर आखिर में उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल वो जिस तरह से नवीद भाई ने या आसिम ने कहा था कि कोई ना कोई एक खिलाड़ी जो है वो निशाना बन जाता है, वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता है, तो वो वहाँ पे हसन अली जो है कल वो निशाना बन गए, और अब ये बात मुद्दतों याद रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खलील साहब आपका, फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आसिम खान आपका शुक्रिया, नवीद अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।